Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 5th of July 2021, Monday. Inspiration of the day is success is the sum of small efforts repeated. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 2. Top e-firm seeks extension in deadline to study new IT rules. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए जो ई कॉमर्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी रूल हैं उनमें कुछ चेंज प्रपोज किया था और जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उनको डायरेक्ट किया था कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स है जो चेंज रूल्स हैं इनको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं चाहे वो अमेज़ॉन हो, टाटा ग्रुप हो, फ्लिपकार्ट हो, पेटीएम हो, स्नैपडील हो, दोज हु आर एक्चुअली हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन ई कॉमर्स सेक्टर, they all are requesting the government to give them more time so that they can study the proposed changes carefully before implementing it. And because of that, all these companies have actually demanded an extension of deadline for submitting the comment by few weeks or at least 20 days. कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने 2 हफ्ते पहले अप्रॉक्सीमेटली जो नए चेंजेस हैं इनको पब्लिक फोरम में डाला था और जितने भी जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स में जो कि उससे इम्पैक्ट होने वाले थे उन सारे चेंजेस से उनसे कमेंट मांगा था, उनसे इनपुट मांगा था विद इन 2 वीक्स, दैट इज़ अप टू जुलाई तक का उनको टाइम दिया गया था और कहा गया था जुलाई तक आप अपने कमेंट दे दीजिए वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव। बट अब जो टॉप प्लेयर्स हैं ई कॉमर्स में दे आर एक्चुअली demanding more time to study the proposed changes. So in a virtual meeting on Saturday, the e-commerce firms told the government that there is a need to re-look at the draft e-commerce rule before actually implementing it. They also raised concern about the current shape and forms the new rule may have the negative impact on their business models. और सिर्फ टॉप जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उन्होंने ही नहीं, जो अदर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं चाहे वो CII हो, फिक्की हो, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI एंड NASSCOM हो, इन सब ने रिप्रेजेंटेशन दिया है और दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर मोर टाइम और टाइम अप टू जुलाई एंड टू सबमिट अ थॉरो प्रेजेंटेशन ऑन न्यू IT रूल स्पेशली रिलेटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्योंकि सारे रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटीज़ का, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ का, टॉप प्लेयर्स का इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो कि नए ड्राफ्ट में हैं। उसको देखते हुए उनका ये कहना है कि अगर इस तरह के रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया तो प्रॉबेबली दीज रूल्स मे हैव सर्टेन इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर बिजनेस मॉडल। जैसे कि Tata Group raises concern on the proposed rule that says related party cannot do any transaction in the market. इसके अलावा seller should also be included in the fallback liability clause. What is this fallback liabilities clause? Basically, a marketplace e-commerce entity shall subjected to fallback liability where a seller registered on its platform fails to deliver the good or services ordered by a consumer due to negligent conduct, omission or commission of any act by such seller in fulfilling his or her duties and liabilities in the manner as prescribed by the marketplace e-commerce entity which causes loss to the consumer. So if any seller is not able to fulfill his or her liability or fail to deliver the goods or services ordered by consumer, in that case a marketplace e-commerce entity will be responsible as per the new draft. और ड्राफ्ट ने क्लियरली डिफाइन किया मार्केट कौन है. The document defines a marketplace as barely a e-commerce entity which actually provide a technology platform or to facilitate the transaction between buyer and consumer.
तो बहुत सारी कंपनीज, इवन टाटा का भी एक कंसर्न है कि आप मार्केट प्लेस जो ई कॉमर्स एंटिटी है उस पर लायबिलिटी कैसे फिक्स कर सकते हैं अगर कोई सेलर अपने गुड्स या सर्विसेज को डिलीवर नहीं कर पा रहा, अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पा रहा। इसी तरह के बहुत सारे अदर क्लॉज हैं जिसको लेकर के कंपनीज बहुत ज़्यादा वरीड है कि अगर इस तरह के रूल्स इंप्लीमेंट हुए तो दैट में अफेक्ट देयर बिजनेस मॉडल नेगेटिवली। कंपनीज आर वरीड अबाउट द न्यू ड्राफ्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 इशूड बाय गवर्नमेंट ऑन जून 2020। तो इन्हीं सारे रूल्स को लेकर के, नए प्रपोज रूल्स को लेकर के कंपनीज आर मोर कंसर्न एंड दे आर आस्किंग गवर्नमेंट मोर टाइम टू स्टडी ऑल दीज प्रपोज चेंजेस। अब देखना है गवर्नमेंट टाइम देती है कि नहीं देती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। India's OECD tax deal may have revenue implications. India conceding ground to bring only top 100 digital companies like Google, Facebook, Netflix into the global taxation pact may have revenue implications. इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज जनरेट हो रही है। इक्वलाइजेशन लेवी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में गूगल टैक्स भी बोलते हैं, डिजिटल टैक्स भी बोलते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डिस्क्राइब्ड सेक्शन में दिया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में जो गूगल टैक्स, डिजिटल टैक्स को लेकर के जो ग्लोबल टैक्सेशन पैक्ट साइन हो रहा है उसका इंडियन गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कई सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि दिस ग्लोबल टैक्सेशन पैक्ट मे हैव द नेगेटिव रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया। व्हाई? बिकॉज आफ्टर दिस पैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और न्यू दिल्ली विल हैव टू विदड्रॉ द कंटेंशियस 2% इक्वलाइजेशन लेवी जो कि रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है ई कॉमर्स कंपनीज पर, डिजिटल कंपनीज पर, ई मार्केटिंग कंपनीज पर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मई लास्ट ईयर से लेकर के उस पर कई ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। यूएसए ने भी थ्रेटन किया था इंडिया को कि अगर इंडिया ने ये इक्वलाइजेशन लेवी या एक्स्ट्रा जो 2% टैक्स इम्पोज किया है ई कॉमर्स कंपनीज़ पर, ई मार्केटिंग कंपनीज़ पर, अगर उसको विड्रॉ नहीं किया तो बहुत सारे जो सब्सिडी प्रोवाइड हो रही हैं, जो बहुत सारे रिलैक्सेशन प्रोवाइड हो रहे हैं इंडियन गुड्स को ऑन अमेरिकन मार्केट, वो सारे विड्रॉ कर लिए जाएंगे। और इसी इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के OECD में भी कई टाइम से नेगोशिएशंस के कई सारे राउंड हो रहे हैं जिसमें कि डिसाइड किया जा रहा है कि जितनी भी कॉमर्स कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज हैं, ई मार्केटिंग कंपनीज में, उन पर सिमिलर टैक्सेशन अप्लाई किया जाए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मिनिमम टैक्स तो एप्लीकेबल हो। और इंडिया इज कंसीडरिंग ग्राउंड टू ब्रिंग ओनली top 100 digital companies like Google, Facebook and Netflix into this global taxation pact definitely have the impact on India's revenue generation। और अगर ये global taxation pact successfully sign हो गया तो इंडिया को 2023 तक जो 2% एडिशनल लेवी इंडिया ने इम्पोज किया है इसको विड्रॉ करना पड़ेगा। एंड दिस मे हैव रेवेन्यू इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया एज एक्सपर्ट्स पॉइंटेड आउट, as the equalization levy has a much lower annual revenue threshold of 2 crore, that is euro 0.2 million as against euro $20 that has been agreed by 130 countries into OECD for this global taxation pact। तो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड डिसाइड हो रहा है इस ग्लोबल टैक्सेशन पैक्ट में वो हो रहा है euro 20 बिलियन। और इंडिया के केस में कितना है थ्रेशोल्ड? इंडिया के केस में थ्रेशोल्ड है 2 करोड़। 2 करोड़ मीन्स यूरो 0.2 मिलियन। तो 20 बिलियन, यूरो 20 बिलियन पे 130 कंपनीज जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं वो एग्री कर रही हैं। तो अगर ये पैक्ट साइन हो जाता है तो इंडिया का जो इक्वलाइजेशन लेवी का थ्रेशोल्ड है इंडिया को या तो बढ़ा करके इतना करना पड़ेगा या तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। और डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन। India, along with other developing countries, was pitching for at least euro 1 billion threshold to cover at least 5,000 global entities, and India collected approximately 2,057 crore from equalization levy in financial year 21 as 85% growth rate over 1,136 crore in the previous fiscal year, यानी fiscal year 2020 में।
And as per the former member of Central Board of Direct Taxation, this OECD deal being worked out will not give the same amount of revenue. It is very clear because threshold limit is very different in these two cases. इंडिया के केस में थ्रेशोल्ड जो रिवेन्यू थ्रेशोल्ड एनुअल लोअर एनुअल रेवेन्यू थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.2 यूरो मिलियन, वेयर एज OECD जो ग्लोबल टैक्सेशन पैक्ट साइन हो रहा है उसमें 20 बिलियन की लिमिट सेट करी गई है एनुअल रिवेन्यू थ्रेशोल्ड की, और डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में जो ये लिमिट है ये बहुत ज़्यादा है रिवेन्यू की लिमिट. बट as per the experts, politically it will be very difficult to say that we will not withdraw the equalization levy. तो इस revenue threshold limit के बाद में there are high chances that India will actually withdraw this equalization levy, contentious equalization levy, जिसको लेकर बहुत टाइम से dispute चल रहा है between US and India. The levy will most definitely go by 2023 if the proposal come into effect, unless India can think of some other way of augmenting taxes. तो हो सकता है किसी और तरीके से टैक्स इंडिया कलेक्ट करने के लिए कोई और टैक्सेशन ले आए. फिलहाल इक्वलाइजेशन लेवी के चांसेस हैं कि वो विदड्रॉ हो जाएगी. दैट बिट इज नॉट क्लियर येट एज पर द फ्यू experts. So this is the equalization levy collection since financial year 17, and we can see it is continuously increasing, and even it increased significantly in financial year 21 because of the 2% additional equalization levy on e-market companies. तो देखना है कि इसको लेकर के क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्या OECD में जो ग्लोबल टैक्सेशन पैक्ट डिस्कस हो रहा है 130 कंट्रीज़ के बीच में, क्या वो साइन होता है, इंडिया उसको इन्फोर्स करती है कि नहीं करती. हालांकि इंडिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पैक्ट. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1. Amazon offers IP protection for local businesses. So e-commerce companies has launched the intellectual property accelerator program in India. इंडिया की अगर हम बात करें तो IP के एरिया में इंडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है हमेशा कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, और अगर स्ट्रिंजेंट हैं तो उनका इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा नहीं है. हालांकि यहाँ पर आईपी और प्रॉफिट के बीच में या डेवलपमेंट के बीच में हमेशा से ट्रेड ऑफ रहता है. इंडिया के सीन में अगर आपको याद हो तो रिसेंटली इंडिया और बहुत सारे अदर डेवलपिंग नेशंस ने कोविड-19 की वैक्सीन पर जो आईपीआर है उसके वेवर को लेकर के इंटरनेशनल फोरम में प्रोटेक्शन किया था और कहा था कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है मैन्युफैक्चरर्स हैं दे शुड शेयर देयर आईपीआर विद द अदर कंट्रीज, द अदर कंपनीज, सो दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी increased and the availability and the accessibility of the COVID-19 vaccine can be ensured to each and every country, each and every individual, and pandemic can be removed from this world. ये तो कोविड-19 का केस हो गया, लेकिन इंडिया के केस में अगर हम बात करें इंडिया की क्यों फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है इंडिया की, why it is called as the pharmacy of the world because of the certain violation of the IPR. हालांकि it's a very long discussion. There is always a debate between the IPR protection and humanity. बट आज की न्यूज़ में हम उस डिस्कशन पे नहीं जाएंगे. देख लेते हैं बेसिक न्यूज़ क्या है. तो ई कॉमर्स जो कंपनीज है उसने इंडिया के लिए एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है. एंड अंडर दिस प्रोग्राम Amazon is offering seller who are also brand owner, it may be small as well as the medium size sellers, easy access to the services from the trusted IP experts and law firms. तो ऐसे स्मॉल और मीडियम साइज सेलर्स जो कि एक ब्रांड ओनर्स भी हैं जिनके छोटे छोटे अपने खुद के ब्रांड्स हैं, they can have the easy access to the IP experts and law firm services related to their intellectual property right protection. Businesses may choose to engage with these IP firms to help to secure their trademark, protect their brand, and tackle infringements on Amazon India and Amazon websites globally. इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो भी स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेज है, जो ब्रांड ओनर्स भी हैं, उनको इस बात की जो डर है, जो
एक मिसट्रस्ट रहता है कि उनका जो ब्रांड है, उनका जो ट्रेडमार्क है, उनका जो ट्रेड सीक्रेट है वो इन्फ्रिंज हो जाएगा अगर वो ई कॉमर्स में जाते हैं या किसी ई मार्केट प्लेस में जाते हैं। तो इससे अमेज़ॉन उन्हें एक ट्रस्ट डेवलप कर रहा है, एक ट्रस्ट डेवलप करेगा बिटवीन द सेलर्स, बिटवीन द कंपनी एंड द सेलर्स, बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड द सेलर। और उस ट्रस्ट बिल्डअप के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ जो रजिस्ट्रेशंस हैं सेलर्स के उस पर्टिकुलर ई मार्केट प्लेटफॉर्म पे वो इंक्रीज़ होंगे। कंपनीज जो होंगी, जो स्मॉल और मीडियम साइज सेलर्स हैं, उनमें जो फियर है, एक अनसर्टनिटी है अपने ब्रांड को लेकर के, आईपीआर को लेकर के, ट्रेड सीक्रेट्स को लेकर के, वो रिड्यूस होगी और उनका पार्टिसिपेशन ई मार्केट में बढ़ेगा। तो एस्टैब्लिशिंग आईपीआर राइट इज एसेंशियल फॉर बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट on consumer trust or customer trust and grow their businesses। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन करना इस तरह के सर्विसेज का इट्स वेरी चैलेंजिंग, अमेज़ॉन के अकॉर्डिंग में इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप आईपीआर को लेकर के आ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे सेलर्स को आपको मना करना पड़ेगा या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा जहां पर आपको ये लग रहा होगा कि ये सेलर जो हैं वो किसी भी दूसरे स्मॉल और मीडियम साइज सेलर का इन्फ्रिंजमेंट करना है, काउंटरफीट है उनका प्रोडक्ट। तो इस तरह के सेलर्स को आपको कैंसिल करना पड़ेगा या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा या उनको प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे। But in long term, this IP protection will actually generate a positive result, and for that Amazon India is actually very excited to launch this IP accelerated program as per their official. And approximately 8,50,000 sellers are registered in Amazon India website as per the current data, and definitely Techform is actually more keen to bring new tools, new technology and innovation on their platform so that their business will grow in India. Or IT Accelerator program will help in ensuring all these technology infusion within the community. So all these are the services that Amazon is offering for their small and medium sized seller related to IP protection. और इसी तरह का प्रोग्राम ऑलरेडी अमेज़ॉन ने लॉन्च किया था इन फाइनेंशियल ईयर 2019 अमेरिका में, और इसके बाद यूरोप, जापान, कनाडा, मैक्सिको, इन सारे कंट्रीज़ में भी आईपी प्रोटेक्शन का जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया जा चुका है बाय अमेज़ॉन, एंड इट इज़ नाउ अप टू इंडिया और इंडियन सेलर्स दैट Amazon is going to launch this IP accelerated program. अब देख लेते हैं some other news clips. SII may double production in 2022. Serum Institute of India is likely to double its manufacturing production by financial year 2022 from 100 million per month doses to 200 million per month doses, and because of that 500 million doses Covishield will be available between August and December 2021, जिससे कि जो वैक्सीन की शॉर्टेज का जो केस आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो एस्ट्राजेनेका जो है, जो उसकी वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सक्लूसिव राइट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को प्रोड्यूस करने का इंडिया में, उसका प्रोडक्शन डबल होने वाला है। एंड एज पर द डेटा it is very clear the effective or efficacy rate of Covishield is better in comparison to the other available vaccine. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Indian SPACs to raise nearly $1 billion in US. What is the full form of SPACs? SPAC stands for Special Purpose Acquisition Companies. That is actually the hottest and the newest vehicle for Indian startup for quickly hitting the initial public offerings market in USA. तो जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं यूएसए में जो आईपीओ लॉन्च करना चाह रही हैं वो इस पर्टिकुलर व्हीकल को, एसपीएसीज को यूज़ करके, इस पर्टिकुलर इस टाइप की कंपनीज को यूज़ करके फंड रेजिंग कर रही हैं, जिससे कि वो यूएस में इनिशियली आसानी से आईपीओ को इशू कर सके। एटलीस्ट 4 SPACs सेटअप बाय इंडियन स्पॉन्सर्ड and their global partners are raising close to $1 billion through IPOs in the US stock market in the next few months. So
all these companies are actually involving themselves in either floating, investing and supporting the blank check companies, which are also known as special purpose acquisition companies. इनको blank check companies भी बोलते हैं. तो हो सकता है किसी एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाए. ब्लैंक चेक कंपनीज बेसिकली स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज. They actually support the startups by investing into startups so that startups can raise money from IPO. They can easily go for IPO. So in a very simple word, these SPACs is a company with no commercial operations. कोई ऐसा उनका कॉमर्शियल ऑपरेशन नहीं होता. दे आर फॉर्म्ड ओनली टू रेज द कैपिटल थ्रू एन IPO फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग अ टारगेट कंपनी. And in the last week, the International Media Acquisition Group, that is in short we call IMAC, was a SPAC floated by Shibasi Sarkara group of CEOs of Reliance Entertainment and refiled a prospect with US Security and Exchange Commission to raise approximately $230 million through IPO. तो अभी के लिए इंडियन SPACs are all set to raise approximately $1 billion from US market through IPOs. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. टेक्सटाइल ट्रेडिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल इन सूरत. तो सेकेंड वेव के कारण जितनी भी जो मीडियम और स्मॉल स्केल टेक्सटाइल कंपनीज हैं सूरत में, गुजरात में, दे आर एक्चुअली फेसिंग द क्राइसिस. द फर्स्ट ऑफ 5 पार्ट सीरीज लुक एट द क्राइसिस. और जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है वो डिसरप्ट हो रही है. क्योंकि अगर हम बात करें वर्कर्स की तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन माइग्रेंट वर्कर हैं सूरत में जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, बेसिकली मोर स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं. जिसमें से 5 लाख माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉयड इन वीविंग यूनिट्स, 4 lakhs laborers in processing units and 2 lakhs textile traders is there in textile market and 450 established textile processing units हैं सूरत में. सूरत टेक्सटाइल के अलावा और किस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए फेमस है, या आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. तो कोविड-19 की वजह से रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लेबर शॉर्टेज भी हो रही है, डिमांड भी हिट कर रही है, जिसकी वजह जो टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, स्पेशली मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल जो सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं कोविड-19 की वजह से. और डिमांड नहीं है, लेबर जब वापस आए तो उनके पास फिर से जॉब नहीं, उनको जॉब क्योंकि डिमांड नहीं है, मार्केट में प्रोडक्शन की, कंपनी में प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए लेबर्स को भी नहीं रखा जाता. तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो देयर, जिसकी वजह से पूरा जो सप्लाई चेन है, वैल्यू चेन है टेक्सटाइल का, वो अफेक्ट हुआ है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप. इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट फेस कंटेनर शॉर्टेज हर्डल. सो विद export demand for engineering goods looking strong in the upcoming months of financial year 21, the shipping containers shortage is causing another problem. एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस भी कई बार किया कि इंडिया के केस में क्या है, इंडिया जितना कोविड-19 सेकेंड वेव से जितना अफेक्ट हुआ है उतना अदर कंट्रीज़ अफेक्ट नहीं हुए थे. इसलिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट था, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो कंटिन्यू था, क्योंकि अदर इकोनॉमीज़ में जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, वो प्रॉपरली रन कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर कोविड-19 सेकेंड वेव का इतना इम्पैक्ट नहीं था. और उसकी वजह से इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, फाइनेंशियल ईयर के जो आगे आने वाले क्वार्टर्स हैं, जो मंथ्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स की डिमांड बढ़ेगी. बट डिमांड और बढ़ने के साथ, एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ अदर प्रॉब्लम्स भी आती हैं शिपमेंट से रिलेटेड. अब जो प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है, जो एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली द शॉर्टेज और द अवेलेबिलिटी ऑफ द शिपिंग कंटेनर्स. तो शिपिंग कंटेनर्स आर एक्चुअली नॉट अवेलेबल एंड दैट में affects the export prospect or export potential of engineering goods in India. इवन एक्सपर्ट्स का जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कंपनीज, उनका तो ये भी कहना है, एक्सपोर्टर्स उनका ये भी कहना है कि फिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 3 times तक बढ़ गए हैं. फिर भी जो इंटरनेशनल जो उनके प्लेयर्स हैं, जो उनके बायर्स हैं, दे आर विलिंग टू पे एनी कॉस्ट, बट अवेलेबिलिटी ही नहीं है कंटेनर्स की. उनको कोई भी जो गुड्स हैं वो अवेलेबल कराया जाए, उनका एक्सपोर्ट किया जाए, उनका शिपमेंट किया जाए. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर शॉर्टेज को लेकर के कोई भी क्लू किसी के पास नहीं है कि जो कंटेनर की शॉर्टेज हो रही है इसको कहाँ से फुलफ़िल किया जाए. मनी की शॉर्टेज होती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है. अदर जो शॉर्टेज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट से या इंडस्ट्री एसोसिएशंस की सपोर्ट से पूरी करी. बट कंटेनर की शॉर्टेज को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लू किसी भी
एक्सपोर्टर के पास नहीं है, एंड दैट मे हैम्पर द एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स इन इंडिया फॉर अपकमिंग मंथ्स। तो जो भी इंक्रीज होने वाला है एक्सपोर्ट पर, उसको शायद इंडिया फुली टैप ना कर पाए। सो ऑल दीज आर द news for today. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.